हेलो, आज हम लोग आए हैं भंडारदरा। यहाँ पे एक मेडिकल कैंप है जो नासिक रोड के आश्वास प्रतिष्ठान और रोटरी क्लब देवलाली ने अरेंज किया है। ये कैंप साल में 2 बार होता है और ऐसे ही ट्राइबल एरियाज में जहाँ पे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती है, उनके लिए ये कैंप होता है, जहाँ पे लोगों को स्क्रीन किया जाता है, उनका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है और बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाते हैं जिनको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत रहती है, तो उनको नासिक रोड में या नासिक सिटी में डॉक्टर्स के यहाँ पे उनको रेफ़र किया जाता है फॉर फ्यूचर ट्रीटमेंट। Today we are here this morning for a dental examination and hygiene camp for the underprivileged on behalf of the Rotary Club of Devlali in coordination or collaboration with Ashwas Pratishthan and IKS Mumbai. So this is our 7th camp that we are conducting over here at Shendi at Bhandardara, and every time we have more than 700 patients to cater to. So hoping for the best today. सर आपका नाम बोल ललिता चंद्रकांत। कुठल्या गावाची आहे साम्राट I am a social worker. I have been a trade unionist for 50 years, more than 50 years. I am 75 now. Basically a trade unionist, some age of 18, 19. All the different civilians in Devali camp, I was doing work for them. Today also AME workshop, Military Dairy Farm, Indian Air Force, Lavavit, Air Force, Ozar. Now I'm retired. Now I don't do much. There are squint cases. At this camp we have not seen much. But in other places, in Bhandardara, there are squints are there, paralytic people are there, eye defect are there. But here, so far, it is not that bad. Well, they do cooperate, but sometimes they don't bring the case paper back. Then we have a problem because when you attend so many people, you cannot remember the history of the patient. Overall, we are around 80 people, 70, 80 volunteers. Right. Apart, right, yes. Many of the children are anemic. Anemic. The quality of food, everything varies. That is
रेड पैलेट्स कम होना एंड आरबीसी। हाँ, कुठला गाव? है क्या पूरे, है क्या पूरे? हाँ. My name is S.B. Tiwari and I represent Symantec Healthcare, a pharma company. In fact, I was working with Hufort Healthcare earlier, and now last 5 years, Hufort became Symantec because of certain conditions. I am based at Nagpur currently from last 5 years. Previous to that, I was in Bombay for more than 16 years. In fact, cultural values that I got from my family, from my elders, is as much as possible to serve the needy one. और इसलिए हमारा भी एक सिद्धांत शुरू से रहा बचपन से कि जितना हो सके लोगों की भलाई कर पाए। इवन ये कंपनी सिमेंटेक का जब फॉर्मेशन हुआ तो हमारा जो भावना था, इसको हमने तुलसीदास जी की चौपाई के साथ और प्रसारित किया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमई। ये भावना हमारी ऊर्जा स्रोत है और हमारे एम्प्लॉइज़ के सभी विजिटिंग कार्ड्स पे ये अंकित है। डॉक्टर अनिल कनाडे साहब से मिलने के बाद जब उन्होंने शेयर किया यह आश्वास प्रतिष्ठान के बारे में, आई वॉज सो मच हैप्पी, सो मच इंस्पायर्ड कि उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो डिवोशन और द पेन, द एफर्ट दैट ही इज टेकिंग फॉर ऑल दिस सोशल सर्विस, आई थॉट कि हम भी शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अपने को धन्य समझेंगे। मेरा भी जीवन सार्थक होगा, किसी के और काम आएगा। कंपनी की जो मेडिसिन है बहुत अच्छी क्वालिटी के है, इकोनॉमिकल है, कम से कम उन नीडी लोगों तक जाएगी जिनको रियल ज़रूरत है। तो हमें भी सेवा का एक अवसर दिया डॉक्टर अनिल कनाडे साहब ने। मैं रियली एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए पर्सन, डॉक्टर कनाडे साहब, डॉक्टर जाधव साहब, एंटायर आश्वास प्रतिष्ठान के लिए धन्यवाद करता हूँ, उनका आभारी हूँ। पूरे जीवन एहसानमंद रहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया जोड़ने का। एंड आई एम रियली सो हैप्पी being a part of Ashwas Pratishthan. What I understand ki in fact the medical professionals like IMA, like Rotary, the efforts that they are taking Ashwas Pratishthan, that is the prime need to at least take care of health first. If health is okay, at least then all the things will take place simultaneously as per the time. So I think we people related with the pharma, medicine, medical fraternity, they shall come forward more to help these guys. बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो देखता हूँ बातचीत से नहीं, जो मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ उसमें देखता हूँ कि बेचारों को बहुत तकलीफ है, बहुत सारी कमियां हैं जिसका शायद हम लोगों को एहसास नहीं होगा जब तक हम देखेंगे नहीं। रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, जो साधन उनको मिलने चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, शायद अभी भी बहुत कमियां हैं, ऐसा दिखता है मुझे। Like don't have any concept like a diet or हाँ नहीं, जो मिल गया खा लिया, कुछ उनका कोई ऐसा प्लान नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कोई उनको आगे रास्ता दिखाने वाला नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है। यहाँ पे जैसे देखा बीपी चेक किया तो 220 ब्लड प्रेशर है, लेकिन माई को नहीं पता है कि मेरा बीपी 220 है एंड शी इज नॉर्मल। तो शायद कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि कोई डॉक्टर चेक करके उनको बताए, अर्ली स्टेज पर डायग्नोस करे तो उनको ट्रीटमेंट जल्दी मिलना शुरू हो जाए। थैंक्स टू यू ऑल। आई विल ओनली प्रे टू गॉड कि वो जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, भगवान इनको खुश रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे इन सबको। मेरा नाम भरत जनार्दन नलवड़े। मैं रहने के लिए नासिक रोड में हूँ। मेरी एज 65 चालू है। मैं 60 में एयरफोर्स से रिटायरमेंट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में था, मैं रिटायर हो गया। मगर मेरा छंद है, मेरा ऐसा काम करने का मेरे को अच्छा लगता है कि भाई ऐसा काम करने से गौर गरीब को जाके हेल्प करना, ये मेरा खून में बसा हुई बात है। इसलिए मैं ऐसा शिविर विबिर हुआ तो मैं ज़रूर जाता हूँ। और मेरे रिलेटिव अनिल कानड़े हैं, उनके वो ऐसे काम करते हैं, मुझे मालूम है
इसलिए मैं उनके साथ आता हूँ। जो उन्होंने जो काम बताया वो मैं करता हूँ, कि जो 2 भाई को गोली दे दो, इनको ये दे दो, उनको लाइन में खड़ा कर दो, ये काम मैं करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष वाडले। मैं पीडियाट्रिक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, वरद विनायक कार्डियक क्लिनिक नासिक में। आश्वास प्रतिष्ठान और रोटरी क्लब ऑफ देवलाली की तरफ आयोजित किया हुआ कैंप, ये एक सोशल इनिशिएटिव है जिसमें कि पार्टिसिपेट करना मेरे लिए अच्छा लगा और इसलिए फिर इस कैंप में मैं पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। So majority of the children are having symptoms of cough, cold, and some of them are also having issues with the scabies, which is like a infective disease of the skin in the children, and some children are having murmurs also. So murmurs are basically added heart sounds, and those may indicate underlying congenital heart defect. So those children may need 2D echo to confirm the underlying cardiac problem and to take the further call. So the general age is 7-8 years, and majority of them are like school going children. So basically it spreads by contact. So wherever they have direct contact with the person who is having infection, so from them the infection can spread to the others. So basically a person who is having similar infection should avoid the school, because it can spread through the anything like direct contact or even in indirect contact through the school benches, or sharing of the tiffins, or sharing of the pencils, books. So this can cause the infection in the others also. So basically once they get infected, they should avoid the schooling for say 3 to 4 days. Once they completely cleared of the infection, they can resume. And along with that, proper hand washing and general care like dental care they need. So it's a infection. So a bacteria causes this infection, and that is the main cause for this thing. I am Lieutenant Colonel Dr. Sophia Shahid. I am a retired Army officer, and I have 30 years of experience and practicing in Devlali for the past 9 years after my retirement. And my motivation to come for this camp is basically to check the dental problems in the children at a very early stage. ऐसा होता है कि
जो डेंटल की जो प्रॉब्लम्स हैं, दांतों की जो समस्याएं हैं, वो ज़्यादातर नज़रअंदाज हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में इसमें कोई भी किस्म का दर्द नहीं होता है और इसलिए वो निगलेक्ट हो जाती है। और जैसे ही बच्चे युवा अवस्था में पहुंचते हैं, तब दर्द होना शुरू होता है और फिर वो डॉक्टर के पास अपनी परेशानी लेकर जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हमें उसे सही समय पर हम उसे रोक सकें, उसे प्रिवेंट कर सकें और सही जो ओरल हाइजीन के बारे में बच्चों को बचपन से ही इस बारे में बताया जा सके, ताकि युवा अवस्था में कोई बड़ी डेंटल प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आगे चल के जैसे बड़े क्लास में बच्चे जाते हैं, जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो भी ज़्यादा समय लगता है, उसके लिए खर्चा भी ज़्यादा आता है और बच्चों को पहली बार दर्द भी महसूस होता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही इसकी हम ट्रीटमेंट की जाए तो दर्द भी नहीं होता है और कम समय में कम खर्च में ये ट्रीटमेंट हो सकता है। तो यही मेरा एक मोटिवेशन है कि टू प्रिवेंट केरीज इन चिल्ड्रन एट अ वेरी अर्ली स्टेज, दैट इज़ माई मिशन। एंड क्योंकि आर्मी में 20 साल काम करने पर मैंने यही देखा कि डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत निगलेक्ट होती है, अक्सर लोग बहुत लेट आते हैं फॉर द ट्रीटमेंट व्हेन इट बिकम्स वेरी वेरी लेट. So that is my motivation. The common problem in children is caries. That's called tooth decay. That is the most commonest problem in the children, and that needs to be addressed at a very early stage. Most of the misconception is that के दूध के दांत हैं, इनमें अगर कीड़ा लगता है तो कोई बात नहीं, वो तो गिर जाएंगे. पर ये बात का आपने ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का जो ओरल हेल्थ है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल हेल्थ ऑफ द बॉडी. अगर दांत स्वस्थ हैं तो पूरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि खाना हम मुंह से खाते हैं और जो डाइजेशन का जो पहला प्रोसेस है, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द माउथ इटसेल्फ. लेकिन अगर बच्चे के दांत में दर्द है या कोई इन्फेक्शन है तो वो ठीक से खाना नहीं चबा पाता है. अगर एक तरफ दर्द है तो वो दूसरी तरफ से खाने लगता है, और अगर दोनों तरफ उसके प्रॉब्लम है तो वो क्या करता है, वो खाना निगलने लगता है, जिसके वजह से जो पाचन क्रिया का जो पहला स्टेप जो मुंह में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और फिर आगे शरीर की आगे समस्या होने लगती है. ये भी हमने देखा है कि बच्चे की जो आजकल की डाइटरी हैबिट्स है, जो चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट्स है, कैंडीज़ है, लॉलीपॉप्स है, और ये कंटिन्यूसली खाते हैं, इस वजह से उनके डेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. पहले के जैसे नहीं कि लोग रॉ वेजिटेबल्स जो है ना वैसे खा रहे हैं, भुट्टा है, गन्ना है, गाजर है, ऐसे नहीं खाते हैं ये लोग, सॉफ्ट डाइट लेते हैं. तो इस वजह से डेंटल प्रॉब्लम्स, डेंटल इश्यूज भी बढ़ रहे हैं. लेकिन हमें इसको एड्रेस करना, इसको सही समय पर नोटिस में लाना, पेरेंट्स की नोटिस में लाना, स्कूल में टीचर्स की नोटिस में लाना, ये ज़रूरी है. और ये हमारे तरफ से एक कोशिश है डेंटल अवेयरनेस को फैलाने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द ओरल हेल्थ, बिकॉज ओरल हेल्थ leads to good general health. That is very important. Okay, the routine they should follow is maintaining the proper oral hygiene. So the first and the foremost thing is proper brushing. Proper brushing when? Okay, so it is very important to brush 2 times in a day. Very important to brush at night before going to bed. Secondly, in the morning after the breakfast. So this 2 times of brushing is very important. At the night, after brushing, they should do flossing. They say it is brushing, flossing, massaging your gums and rinsing your mouth properly. If they follow this 4 regime properly, the dental problems can be prevented. Namaste. My name is Renuka Das Balakrishna Deshpande. I live in town of Parbhani, around 400 kilometers from Nasik city, and I come here every 6 months because I am committed for this camp. I was called to this in 2018 for the first time by my dear friend Dr. Anil Kanade sir. And when I saw the selfless zeal with which all the Nasik doctors, they devote their time, their energy, their resources for the welfare of the rural people in the remote area of Bhandardara, I myself became committed, and I
come here and do my job as a medical doctor. I give the anti-tetanus injections, the vaccines for all the eligible patients, and from time to time I participate in the discussions and future planning with such stalwarts as Dr. Sahasrabuddhe and our beloved president, Dr. Praveen Jadhav sir. One of the most common issues that I observe is, let us say, some very avoidable diseases which come from poor hygiene in the first place, and in the second place, long-term negligence of any major problem like sugar, even diabetes and other profiles. They usually become neglected because of the lack of regular follow-up. So our group is working on that. At my table, we give only the anti-tetanus vaccine to the needy so that they are guarded against the injuries from accidents. But then there is a full pharmacy which has come into being because of the cooperation and contribution of pharmacists and companies and donors, everyone. So from antifungal, from antibacterial, normal antibiotics, anti-helminthics, pediatric medicines, about 50% medicines we manage to give them which are necessitated for all the patients. मी तुम्हाला पुन्हा सांगतो, म्हणजे तुम्हाला ग्रुप आणि सगळी माहिती अशी हवी असेल तर 2 रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अनिल कानडे, डॉक्टर प्रवीण जाधव, आम्ही त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच काम करतो आणि इट्स युजुअली अ मच प्लेझंट एक्सपिरियन्स टू वर्क विथ देम. आणि दे आर द डिसिजन मेकर्स अँड पॉलिसी मेकर्स, सो यू हॅड बेटर गिव मोर टाइम टू देम. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. चलो बेटा, आकर मोठा, आकर मोठा, मोठा आकर. व्हेरी गुड. किती छान. तू दात जास्ती घासते वाटतं. बघू आकर मोठा. आपण दात तपासणार आहे इथे, ठीक आहे. वरती बघ. आकर ना मोठा उलट. किती मोठा आकार ते बघू ना. दिसतच नाही मला काय. लाडू खाते का नाही मोठा? ओनली वन. नाही हेल्दी नाही. नील. चलो, वेरी गुड. ठीक है मैडम, तुम लिया. हेलो, आई एम डॉक्टर पुष्कर जोशी. मैं डेंटल सर्जन हूँ और नासिक में रहता हूँ. मेरी प्रैक्टिस देवलाली कैंप और नासिक रोड में मेरे क्लिनिक्स हैं. ये कैंप आश्वास प्रतिष्ठान और रोटरी क्लब ऑलमोस्ट 3 साल से करते आ रही हैं. मैं इस कैंप से ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ. ये मेरा 3rd कैंप है. जितना भी हम लोग चेकअप यहाँ पे करते हैं, ऑलमोस्ट हर कैंप में हमें 700-750 प्लस पेशेंट्स यहाँ पे हमें देखने मिल जाते हैं. जो भी बच्चे, जो भी बड़े यहाँ पे आते हैं, उनको डेंटल ट्रीटमेंट की सुविधा यहाँ नज़दीक बिल्कुल भी कहीं भी अवेलेबल नहीं है. सबसे नज़दीकी अस्पताल जो है डेंटल, दैट इज़ SMBT डेंटल कॉलेज, वो करीब 30 से 40 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है. तो इनको कुछ भी एक्सपोजर नहीं है. जो भी डेंटल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, पेन होता है, डीके होता है, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इनको ये लोग सहन करते हैं. तो ऐसे में इनको हम लोग चाहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसका हमें एक सर्वे लेना होता है. सर्वे लेके वी विल बी प्लानिंग कि हम लोग अगले टाइम से इनको किस तरीके से बेसिक ट्रीटमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं. हाल फिलहाल हम लोग यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए हमको यहाँ से SMBT कॉलेज इनको रेफ़र कर रहे हैं. It is a very good work that is initiated by Ashwas Pratishthan. I am proud to be with it. Most common is neglect basically. जो dental caries सबसे high incidence है और untreated है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है. डीके हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ख़राब हो चुके, टूट जाते हैं, खाने में दिक्कत है, बट लीस्ट बॉदर्ड क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है. दैट इज़ द प्रॉब्लम. प्रिवेंट करने के लिए इनको बेसिकली एजुकेशन की ज़रूरत है कि किस तरीके से प्रिवेंट करना चाहिए. इनको बेसिक ट्रीटमेंट्स यहाँ नज़दीक कहीं अवेलेबल करानी चाहिए. या तो हम कॉलेजेस से बात करने वाले करके यहाँ पे कोई सैटेलाइट क्लिनिक्स जैसा ओपन कर सकते हैं, या फिर डेंटल वैन्स अगर अवेलेबल हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए, तो इनको यहाँ पे वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, सो दैट दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग डेंटल ट्रीटमेंट्स. इनको बेसिकली माइंडसेट ही नहीं है डेंटल ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करने का. सो उनको एजुकेशन और उसके साथ साथ फिर माइनर ट्रीटमेंट्स पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी, एंड देन वी कैन गो इन फॉर एक्चुअल मेजर ट्रीटमेंट्स. दिस इज़ अगेन, एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ माय 3rd कैंप दैट आई एम अटेंडिंग. तो पहले से हम लोग वी आर बेटर इक्विप्ड. हम लोग सारा डेटा एसिमुलेट कर रहे हैं. वी आर राइटिंग डाउन किसको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से एज ग्रुप में क्या प्रॉब्लम्स हमें मिलती है. तो अगले टाइम से वी विल बी ट्राइंग
in getting portable motors, dental motors, increasing our number of dentists, और कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स अगर यहाँ पे हम लोग इनिशिएट कर पाए इन लोगों के लिए, जैसे कुछ कुछ एक्सट्रैक्शंस हैं या कुछ कुछ बेसिक फिलिंग्स हैं, तो वो हम लोग इनिशिएट करना चाहेंगे अगले कैंप से. बट येस, दिस इज़ अ वेरी गुड सेटअप दैट दे हैव डन दिस टाइम एज वेल, एंड वी आर इम्प्रूविंग एंड वी विल कीप ऑन इम्प्रूविंग. मेडिसिन्स मोस्टली सारी यहाँ पे अवेलेबल है डेंटल के लिए. एक दो चीज़ें जो हमें हर बार समझ में आता है कि नहीं है, तो वी हैव नोटेड दोज डाउन, और वो हम लोग अगली बार से वो भी अवेलेबल करा देंगे. प्रथम तर सर्वांचं स्वागत. खरं तर स्वागत सकाळीच करायचं असते, पण आता आपला कार्यक्रम आपण आता जो वोट ऑफ थँक्सचा इथे एक छोटेखानी कार्यक्रम आयोजित करतोय. तर प्रथम तर मी तर आधी सगळ्यांच्या आधी मी डॉक्टर कानडे सरांचा म्हणजे खूप आभार व्यक्त करतो की त्यांनी जी लिंक जोडली, सगळ्यांना जोडलं इथं. कारण ते त्यांचे मेसेज त्या ग्रुपला मला पण ॲड केलं होतं, जो तुमचा आपला कॅम्पचा ग्रुप होता, ते मी मेसेज बघत असायचो बऱ्याचदा की काय चाललंय. ते कॉन्टॅक्टमध्ये पण होते. आपली डेट चेंज झाली, तर त्याच्या अनुषंगाने आजच्या ह्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला जे प्रेसिडेंट आश्वास प्रतिष्ठान डॉक्टर प्रवीण जाधव सर, रोटरी क्लब ऑफ देवळाली कडून सर, मला वाटतं इथे सुंदरम सर, IKS केअर फाउंडेशन मुंबई सर आहेत, आणि सिव्हिल हॉस्पिटलकडून पण आपल्याला आज सेवा मिळालेली आहे, तर गोपाळ शिंदे सर. तर आपण सर्व लोक इथं आलात म्हणजे एकंदरीत कसं होतंय की हा फार इंटेरियर एरिया आहे. नॉर्मली काही कॅम्प नाशिकच्या अवतीभोवती, मुंबईच्या अवतीभोवती होत असेल, पण मुंबईचा माणूस येऊन आणि इथे कुठेतरी अशा इंटेरियरला येऊन सेवा देणं, तर हे खरं तर आम्हाला म्हणजे त्या सेवेत तुम्ही आम्हालाही थोडा पार्ट बनवणं हे आमचं कुठेतरी भाग्यच आहे. तर आमच्या कळसुबाई हरिश्चंद्रगड अभयारण्यातर्फे सगळ्यांचं खूप 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 धन्यवाद. आमच्याकडून एक छोटेखानी आता आलात तर एक कसं प्रवीण जाधव सरांना एक आठवण म्हणून सर्व यांना प्रतिनिधी स्वरूपाचं एक आमच्याकडून हो येस येस या सर, आपण पण या. रोटरी रोटरी क्लब ऑफ देवळाली सरांना विनंती करतो की आमच्याकडून थोडासा IKS केअर फाउंडेशन मुंबई आणि डॉक्टर गोपाल शिंदे सर, सिव्हिल हॉस्पिटल नाशिक, सिव्हिल टीम या थांबा इथे.
एकंदरीत खूप चांगलं आयोजन झालं आहे. पण अजूनही तुम्हाला जर काही वाटत असेल की अजून याच्यात आपण काही सुधारणा करू शकतो किंवा काही, तर थोडं आपलं सजेशन आम्ही आणि ज्या काही त्रुटी राहिल्या असतील त्या निश्चितपणाने पुढच्या वेळेस आम्ही त्याच्यावर मार्ग काढू. सर 2 शब्द. नमस्कार सगळ्यांना. आश्वास प्रतिष्ठानचा प्रेसिडेंट म्हणून मी इथे तुमच्यासमोर आहे. मी प्रेसिडेंट म्हणून आहे, पण मेन काम करणारे डॉक्टर अनिल कानडेच आहे आणि त्याच्यामुळे जे सगळं होतं आहे. तर पहिली सगळ्यात प्रथम म्हणजे अनिलचं अभिनंदन. एवढं काम करून ते सगळं मॅनेज करतो, प्रॅक्टिस करून. खरं म्हणजे अनिल पवार साहेबांना सांगायचं की आम्ही 3-4 वर्ष 3.5 वर्ष करतो आहे सगळं. त्यांच्याशी पहिलाच संबंध आला. आम्हाला थोडी धाकधूक होती की कसं होईल काय होईल, पण सगळं छान व्यवस्थित झालं. पेशंट बऱ्यापैकी आपण बघितले. शाळेतल्या मुलांचं चेकअप झालं ते मला फारच प्रशंसनीय वाटलं. त्याचं कारण असं की IKS टीमचे डॉक्टर मितुल ठक्कर यांच्याशी माझं जे बोलणं झालं त्याच्यावरनं असं मला कळलं की आत्ता ह्याच्या आधी आणि आत्ता जे हेमोग्लोबिन तपासलं गेलं लहान मुलांचं, त्याच्यातले 30 ते 40% लोकांचं मुलांचं हेमोग्लोबिन फारच कमी होतं. आणि जर या मुलांचं हेमोग्लोबिन कमी असेल, म्हणजे रक्त कमी असेल, तर आपली पुढची पिढी कशी असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. म्हणजे याच्यात भारताचं दुर्दैव आहे, आपल्या सोसायटीचं दुर्दैव आहे. ते ह्याच्यामधनं आपल्याला नुसतं चेकअप नाही करायचं आहे, मुळापासनं घाव घालायचं आहे. त्यातल्या त्यात ज्यांच्यापर्यंत आपण पोचू शकतो त्यांना वरती आणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे हे सगळं. आणि पहिल्यापासून आमचं ध्येय हेच आहे की नुसतं सर्दी खोकला किंवा जे काही सिम्पटम्स जे तापाकरता आम्ही औषधं नाही देणार. मुळापासून ज्यांना पुढच्या ट्रीटमेंटची गरज आहे ते पण आम्ही करण्याचा प्रयत्न करणार. तर ह्या कॅम्पकरता 6 महिन्याचा तो श्रीवर्धनपासून 80 वर्षाचे डॉक्टर सहस्रबुद्धे सर सामील झाले. खूपच मी साधा सांधेवाचा डॉक्टर आणि त्याच्यापासून सिव्हिल हॉस्पिटलचे डीन, म्हणजे विविध प्रकारचे विविध स्तरावरचे लोक त्याच्यात सामील आहेत. त्यांचं ध्येय एक आहे. वन विभागाकडनं आम्हाला खूप सहकार्य मिळतं आहे. तर असंच पुढे मिळत राहिलं तर मला थोडी नाही मला बऱ्यापैकी आशा आहे की आपलं गाव, आपली सोसायटी, आपला देश पुढे जाईल आणि भारताचं नाव अजून उंचवेल. तर वन विभागाकरता तुमचे विशेष आभार. आणि तुम्ही सगळे आलात. प्रत्येकाचं नाव नाही घेऊ शकत, प्रत्येकाचं योगदान एकदम अत्युच्च दर्जाचं आहे आणि त्यांना थँक्यू म्हणणं सुद्धा खूपच छोटा शब्द आहे. तरी पण एकदा म्हणतो थँक्यू. धन्यवाद. This is a farewell speech for today on behalf of Ashwas and all its members, and this is also a vote of thanks on behalf of Ashwas. This is a 7th episode that we have been regularly visiting this very picturesque and natural campus of Bhandardara and treating its residents over here. We have been doing our best, and the Department of Forest and all other people all the way from Nashik, they have been lending a helping hand. We thank one and all. Thank you ever so much. All the volunteers, all the pharmacists, all the medico and non-medico people, those who spend their time and efforts in the service of humanity. We thank them all, and we hope and pray to God that this tradition will be firmly established and continued for decades together. Thank you. भारत माता की जय.